Today we will learn about the last part of the physiology of vision, that is the color vision. So we will see how we are able to see the color vision. Okay, so starting with the the visible spectrum. जो आपका visible spectrum होता है, that is the spectral colors. What are the range of the visible spectrum? 400 to 750 nanometer. It is in fact 380 to 750 होता है लगभग 700 nanometer. So these are called the visible spectrum. Okay, and 400 से अगर नीचे होता है, that is called the, उस रेस को क्या कहते हैं? That are called ultraviolet rays. When it is wavelength अगर ज़्यादा होते हैं 700 से, that is called infrared. So we are not able to perceive those rays, and there are some lower animals and they are able to perceive in that range in fact. So the colors which are produced by mixing these spectral colors, okay, that is called the extra spectral colors. क्या होता है? हमारा विबजियोर होता है, these are the spectral colors. उसमें क्या होता है? अगर आप मिक्स करेंगे उस स्पेक्ट्रल कलर्स को, यू गेट द एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रल कलर्स, है ना. उसके अलावा भी हम कलर्स परसीव करते हैं ना, विबजियोर के अलावा वायलेट, इंडिगो एंड वट एवर, जो भी हमारा 7 कलर्स होते हैं. सो दोज कलर्स आर कॉल्ड द एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रल कलर्स, like the brown or purple. Okay, and our human eye is having the ability to perceive more than 100 different type of colors, and they are the characteristics of the color. Whatever the colors you are perceiving, it is having certain characteristics. That is the intensity of the color, the hue of the color, and also the saturation of the color. इन तीनों का मिक्सचर होता है तभी हम परसीव कर पाते हैं. ओके, इंटेंसिटी, ह्यू एंड सैचुरेशन. सो इन कलर, अगर किसी को कलर विजन का डिफेक्ट है, इफ यू आर हैविंग द डिफेक्ट इन द कलर विजन, then there will be some defect in these 3 characters of the colors. This color vision is very important for your exam point of view. Short note में usually पूछा जाता है एग्जाम में. So the characteristics of the color, whatever the color, the color depends on the intensity, the hue and the saturation. तीनों का मिक्सचर होता है तब हम परसीव कर पाते हैं कलर्स को. So if there is defect in the color vision, there will be defect in these 3 characters of the color. And there are the 3 primary colors: red, green and blue. These are the 3 primary colors. Okay, and इन्हीं का कलर मिल करके क्या होता है? अलग कलर्स बनते हैं फिर. Then these primary colors, ये जो primary colors है red, green and blue, जब हम इक्वल प्रोपोर्शन में तीनों को मिलाते हैं, then it becomes white color. अंदर आ जाओ. Okay, white color आ जाता है. And you get, अगर different proportions में हम तीनों primary colors को अगर मिक्स करते हैं, you get different type of colors. Okay, so these are the primary colors. So any color can be produced if you mix these 3 colors in varying proportions. Then coming on to the complementary colors. Complementary colors क्या हुआ? Like orange को अगर हम blue से अगर मिलाएंगे तो white color मिलेगा आपको. These are called the complementary colors. इन दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे, then you get the white color, like purple, green. Okay, so these are called the complementary colors. Then there is effect of illumination. Okay, that is the किस इंटेंसिटी से वो कलर आपको, लाइट आपको आ रहा है आईज में, इस पे भी डिपेंड करता है. लाइक देयर इज टर्म कॉल्ड पुरकिंजे शिफ्ट फिनोमेना. ये क्या होता है? जब स्पेक्ट्रल कलर्स में आपको आईज पे आते हैं, जब आप डीम लाइट में होते हो, तो व्हाट हैपेंस दैट द मैक्सिमम इंटेंसिटी इज ऑफ ग्रीन कलर, है ना. डीम लाइट विजन में मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको किसका मिलता है? ग्रीन कलर का. ओके, अमंग द विजुअल स्पेक्ट्रम. एंड व्हेन यू शिफ्ट इट इनटू द ब्राइट लाइट कलर, ब्राइट लाइट में अगर आप चले जाते हो तो ग्रीन कलर से शिफ्ट होकर मैक्सिमम इंटेंसिटी किसका हो जाता है? येलो का. सो दैट फेनोमेना इज कॉल्ड द पुरकिंजे शिफ्ट फेनोमेना. ओके, so because there is a shifting of the color intensity. Okay, so that is called the Purkinje shift phenomena. And for color vision, cones are mainly responsible. Cones are the receptors for the color vision. Okay,
and you have to understand the theories of the color vision. ये पूछा जाता है एग्जाम में, शॉर्ट नोट में आ जाता है theories of color vision. So there are different theories which has been propounded, but two of the most accepted theories which is usually read, that is called the, what are those theories? Young theory, Young Helmholtz theory होते हैं, and it is also called pigment theory भी कहते हैं, and it is also called trichromatic theory, and another name is retinal theory भी कहते हैं इसको. Okay, so this theory is very important, like pigment theory, trichromatic and Young and Helmholtz theory. Young was a scientist. ये क्या इन्होंने पहले इस थ्योरी के बारे में बताया था, उसको इन्होंने हेल्महोल्ट्ज ने फर्दर इसको मॉडिफाई किया था. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यंग हेल्महोल्ट्ज थ्योरी. ओके, दिस थ्योरी टेल्स अस दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन पिगमेंट्स. एक तो आपको रॉड्स एंड कोन्स होते हैं. कोन्स में भी इन्होंने बताया कि 3 तरह के कोन्स होते हैं, है ना. दिस डिपेंडिंग अपॉन द 3 डिफरेंट प्राइमरी कलर्स, रेड सेंसिटिव कोन पिगमेंट, ग्रीन सेंसिटिव कोन पिगमेंट एंड देन ब्लू सेंसिटिव कोन पिगमेंट. ठीक है, उन्होंने ये बताया. और इसमें अगर डिफेक्ट होता है तो देन कलर ब्लाइंडनेस और कलर डिफेक्ट अकर्स. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कलर विजन डिपेंड्स ऑन दिस 3 कोन रिसेप्टर्स, है ना. कोन रिसेप्टर्स है, फोटो रिसेप्टर्स. सो दिस ऑन 3 कोन रिसेप्टर, दैट इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू, एंड ईच आर हैविंग द डिफरेंट स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी. मैक्सिमम सेंसिटिविटी सबका अलग अलग होता है, मैक्सिमम सेंसिटिविटी ऑफ दीज 3 टाइप्स ऑफ कोन्स. ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ पे ये मैक्सिमम काम कर रहा होता है. एंड दिस थ्योरी ऑल्सो टेल्स अस दैट एटलीस्ट 2 ऑफ द कोन्स मस्ट बी प्रेजेंट टू परसीव इट एज कलर. कलर तभी आपको दिखाई देगा व्हेन एटलीस्ट 2 ऑफ द कोन्स आर प्रेजेंट. अगर एक कोन प्रेजेंट होगा, ओनली 1 कोन इज प्रेजेंट, then you will not be able to perceive it as colorful. Color objects को आप कलर आप पहचान नहीं पाओगे. You will only able to perceive it as gray light, black and white. Okay, so at least 2 of the cones are required for color vision. 2 type of cone mandatory है. 2 pigments, these allow for the processing of the, ये processing कर पाता है. That's why, and 3 cone pigments अगर होगा तो it will be superior processing will be there. ऑब्वियसली अगर तीनों अगर कोन पिगमेंट्स है तो बेटर प्रोसेसिंग होगा इन द गैंग्लियन सेल एंड अदर नर्व लेयर. सो 3 तरह के कौन कौन से हो गए? रेड सेंसिटिव कोन पिगमेंट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लो वेवलेंथ सेंसिटिव कोन पिगमेंट. ओके, लो वेवलेंथ सेंसिटिव कोन पिगमेंट. रेड सेंसिटिव आपका रेड सेंसिटिव कोन पिगमेंट इरिथ्रोलैब भी कहते हैं, इरिथ्रोलैब लॉन्ग वेवलेंथ होगा आई थिंक, है ना. रेड सेंसिटिव का तो रेड का तो लार्ज होता है ना वेवलेंथ, विव जियोर कम से ज्यादा की तरफ जाता है वेवलेंथ ना. सो लॉन्ग वेवलेंथ सेंसिटिव कोन पिगमेंट होगा, लॉन्ग वेवलेंथ सेंसिटिव कोन पिगमेंट. ओके, सो दिस एब्जॉर्ब द लाइट मैक्सिमली इन द येलो पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम इंक्लूडिंग द रेड पोर्शन को तो कर ही रहा है क्योंकि रेड सेंसिटिव कोन पिगमेंट है. एंड इट ऑल्सो इंक्लूड द इन द येलो पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम. विव जियोर के पास देखो तो रेड के पास येलो आता है ना. सो इट ऑल्सो मैक्सिमली इन द येलो पोर्शन एंड इट ऑल्सो एक्सटेंड्स अप टू द रेड पोर्शन. ओके, एंड इसका पिक कहाँ पे होता है? 560 नैनोमीटर पे, है ना. यू हैव टू राइट, अगर ये थ्योरी आता है तो यू शुड राइट दिस पॉइंट. देन अनदर इज द ग्रीन सेंसिटिव कोन पिगमेंट, दैट इज मिडिल वेवलेंथ सेंसिटिव कोन पिगमेंट या मीडियम सेंसिटिव कोन पिगमेंट. मीडियम वेवलेंथ का ये सेंसिटिव है कोन पिगमेंट है ये. दिस एब्जॉर्ब द लाइट मैक्सिमली इन द ग्रीन पोर्शन. जो ग्रीन पोर्शन है स्पेक्ट्रम का, वहां पे ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है एट वेवलेंथ ऑफ 530 नैनोमीटर. 560 पे रेड वाला कर रहा था मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एंड 530 पे आपको ग्रीन वाला कर रहे हैं. देन ब्लू सेंसिटिव कोन पिगमेंट, दैट इज द शॉर्ट वेवलेंथ सेंसिटिव कोन पिगमेंट. ओके, 3 टाइप के हो गए डिपेंडिंग अपॉन द कलर्स. दिस एब्जॉर्ब द लाइट मैक्सिमली इन द ब्लू वायलेट रीजन of portion of the spectrum. Peak sensitivity
420 नैनोमीटर पे वेवलेंथ पे. Okay, these three types of cone pigments must be present to perceive it as optimal color vision. So you can see you have to make this diagram. अगर एग्जाम में आता है तो ये वाला डायग्राम जरूर बनाना. Okay, you can plot this as light absorption maximum in percentage. Percentage में this is the wavelength of the light, spectral wavelength है. You can see ये आपको maximum sensitivity यहाँ पे दिखा रहा है. पीक है यहाँ पे 560, 530 एंड 420 नैनोमीटर. ठीक है, बट दीज आर नॉट एक्सक्लूसिवली. ये रेड पे है तो ऐसा नहीं है, देखोगे यहाँ पे तो ओवरलैप कर रहा है ना, जो ओवरलैप कर रहा है, दीज आर ऑल ओवरलैपिंग. तो ऐसा नहीं कि मैक्सिमम सेंसिटिविटी रेड पे है तो सिर्फ रेड को ही देख पाएगा, अदर विल बी ऑल्सो विजिबल, बट मैक्सिमम इसका सेंसिटिविटी होगा. ओके, यू शुड मेक दिस डायग्राम. यहाँ पे ग्रीन है. ओके, दिस इज द येलो एंड रेड पोर्शन हेयर. दिस इज द ब्लू वायलेट पोर्शन. सो यू शुड मेक दिस मीन एब्जॉर्प्शन ऑफ ए स्पेक्ट्रम ऑफ द थ्री कोन पिगमेंट्स. देन द अनदर थ्योरी, फर्स्ट थ्योरी हो गया ट्राइक्रोमैटिक थ्योरी, यंग हेल्महोल्ट्ज थ्योरी. द अनदर थ्योरी विच इज वेरी पॉपुलर, दैट इज द ओपोनेंट थ्योरी. इसको हम हेरिंग्स थ्योरी भी कहते हैं. द साइंटिस्ट नेम्ड हेरिंग, that's why he gave this concept upon him. The name is Hering's theory of color vision. Okay, and this theory tells us that there are two opposing colors. This is based on that the cone photoreceptors are linked together to form three opposing color pairs. है ना, opposing colors है, like red green. एक साथ दोनों कलर नहीं परसीव होगा. रेड ग्रीन एक ही जगह पे, ब्लू येलो ब्लैक व्हाइट. So these are called the opponent theory. And as per this theory, no two members of a pair can be seen at the same location. एक लोकेशन पे ये दोनों पेयर आपको नहीं मिलेगा, रेड ग्रीन, ओके, ब्लू येलो ब्लैक व्हाइट. So this theory tells us about the opposing colors. That's why इसका नाम है opponent theory. So we do not experience colors like रेडिश ग्रीन हमें नहीं मिलता, ब्लूइश येलो नहीं मिलेगा. ओके, बिकॉज दे आर द ऑपोजिंग कलर्स कहते हैं. एंड दीज आर द थ्री एरियाज वी शो द कलर ओपोनेंट थ्योरी. गैंग्लियन सेल लेयर, वो क्या था, रेटिनल थ्योरी कह रहे थे उसको, है ना. उसको हम रेटिनल या पिगमेंटेड थ्योरी भी कह रहे थे. फोटो पिगमेंट से मेनली होता है वो रॉड्स एंड कोन्स एरिया में. लेकिन ये वाला जो थ्योरी है आपका ओपोनेंट थ्योरी, ये आपको इसमें गैंग्लियन सेल्स and cells of the lateral geniculate body and the neurons of the visual cortex. Okay, these show the color opponent property. ठीक है. So the ganglion cells, cells of the lateral geniculate body and neurons of the visual cortex, they show the color opponent property. और आपको यंग हेल्महोल्ट्ज कौन से बता रहा था, रोड्स एंड कोन्स में जो फोटो पिगमेंट थे उसके बारे में बता रहा था. ठीक है. एंड इसमें भी दो तरह का है, सिंगल ओपोनेंट प्रॉपर्टी. कुछ सेल्स होते हैं विच शो द सिंगल ओपोनेंट प्रॉपर्टी, एंड अनदर ग्रुप ऑफ सेल्स दे शो द डबल ओपोनेंट प्रॉपर्टी. सिंगल ओपोनेंट क्या हुआ, मेनली द सेल्स ऑफ द गैंग्लियन एंड द सेल्स ऑफ द लैटरल जेनिकुलेट बॉडी. दीज टू टाइप्स ऑफ सेल्स, जो गैंग्लियन में सेल्स है, गैंग्लियन सेल्स लेयर में, और लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में जो सेल्स है, ये आपको सिंगल ओपोनेंट प्रॉपर्टी बताता है. अभी देखेंगे क्या होता है. डबल ओपोनेंट प्रॉपर्टी शोन बाय द सेल्स ऑफ द विजुअल कॉर्टेक्स. ओके, यस, व्हाई आर यू टॉकिंग लास्ट. सो दिस इज द डायग्राम टू शो द सिंगल ओपोनेंट प्रॉपर्टी. हाउ द दो जो अपोजिंग कलर्स है एक पॉइंट पे अगर आएगा, एक ही फोकस पे, तो दे विल नॉट बी एबल टू परसीव. यू कैन सी हियर गैंग्लियन सेल्स है, एक टाइप के सेल्स है इसमें. गैंग्लियन सेल्स में वन टाइप ऑफ सेल इज प्रेजेंट इन विच अगर रेड स्टिमुलेशन सेंटर पे होगा, ओके, एंड पेरिफेरी पे अगर होगा ग्रीन कलर, अगर रेड सेंटर पे होगा रेड स्टिमुलेशन, देन इट विल बी एबल टू स्टिमुलेट दिस गैंग्लियन सेल. ठीक है. एंड पेरिफेरी पे अगर ग्रीन होगा तो इनिबिशन होगा. एंड अगर पेरिफेरी पे आपको रेड का स्टिमुलेशन है, सिंगल टाइप ऑफ सिंगल ओपोनेंट है इसमें,
ओके, दैट इज द ऑफ सेंटर सेल्स। गैंग्लियन सेल्स में और विजुअल कॉर्टेक्स में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक ऑन सेंटर एंड एक ऑफ सेंटर सेल्स, है ना। ऑन सेंटर जो बीच में सेंट्रल रेटिना एरिया में है, ऑफ सेंटर सेल जो पेरिफेरल रेटिना में। ओके, सो दिस इज टेलिंग दैट इफ द रेड स्टिमुलेशन इज इन द सेंटर और इन द पेरिफेरी, तो ये स्टिमुलेट हो रहा है, एंड ग्रीन स्टिमुलेशन अगर सेंटर में है या पेरिफेरी में है, देन इट इज इनहिबिटेड। ओके, देन देयर आर अनदर टाइप ऑफ गैंग्लियन सेल्स विच इज जस्ट अपोजिंग। सेंटर में ग्रीन है या पेरिफेरी में ग्रीन है, देन इट इज स्टिमुलेटेड, दिस टाइप ऑफ सेल्स ऑफ गैंग्लियंस। एंड अपोजिट टू दैट, अगर रेड सेंटर में या पेरिफेरी में है, देन इट इज इनहिबिटेड। सो एट वन पॉइंट दोनों एक साथ आपको क्या हो रहा है, सिंगल ओपोनेंट शो कर रही है। देन अनदर टाइप ऑफ सेल दैट इज द डबल ओपोनेंट सेल्स, these are present mainly in the visual cortex area. Okay, इसमें क्या कर रहा है, at simultaneously if there is focus, आपको सेंटर में क्या हो रहा है, रेड स्टिमुलेशन हो रहा है एंड ग्रीन पेरिफेरी में, देन इट इज स्टिमुलेटेड, एंड अपोजिट टू दैट ग्रीन सेंटर में एंड रेड पेरिफेरी में, देन इट इज स्टिमुलेटेड। जस्ट इसका रिवर्स है, ग्रीन सेंटर में एंड रेड पेरिफेरी में। सो these are the types of cells which are present here. ना, visual cortex is showing the double opponent property. ठीक है? Then you have to understand how this color sense, आपको बताया था लास्ट क्लास में, that is the visual pathway में, that कैसे color sensations भी कैसे पहुंच रहे हैं. So what is the pathway to be followed for the color sensation? You can see this diagram, you can visualize this. रॉड्स एंड फोटो पिगमेंट लेयर्स है, इसमें रॉड्स एंड कोन्स तीन टाइप के हैं, रेड सेंसिटिव कोन्स थ्री टाइप के कोन्स हैं इसमें, है ना। तो लाइट यहाँ से आया, यहाँ से अंदर से आता है लाइट, है ना, इसमें ट्रांसपेरेंट लेयर, यहाँ जाकर इसको फोटो पिगमेंट जिसमें है तो उसको ब्लीचिंग करेगा, है ना। तो इट विल बी कैरीड फॉरवर्ड, जब ये एक्शन पोटेंशियल में डेवलप करेगा तो कलर इन्फॉर्मेशन विल बी कैरीड। कलर जो इंफॉर्मेशन होगा वो स्पेसिफिक कौन सेल्स का होता है फंक्शन, तो कौन सेल्स इसको कैच करेगा एंड इट विल बी द ट्रांसमिशन विल बी कैरीड फॉरवर्ड बाय द गैंग्लियनिक सेल। सी इज फॉर पार्वोसेलुलर, है ना, बड़े सेल्स होते हैं इसलिए, सॉरी शॉर्ट सेल्स होते हैं पार्वोसेलुलर, ठीक है। पी गैंग्लियनिक सेल्स एंड कौन सेल्स किससे जुड़े होते हैं, गैंग्लियन सेल्स होते हैं ना, और गैंग्लियन सेल्स किससे जुड़े होते हैं, और वो पहले बाइपोलर से होते हैं, देन गैंग्लियन सेल्स से होते हैं, एंड गैंग्लियन सेल्स इज कैरीड फॉरवर्ड टू फॉर्म द ऑप्टिक नर्व, यही है ना पाथवे। तो ई गैंग्लियनिक सेल इट विल बी अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, कैसे इट विल कैरीड फॉरवर्ड, color information will be taken up by the cone cells, then it will be taken up by the ganglionic cells, and after the ganglionic cells कौन लेके जाएगा पाथ पे, इट विल फॉर्म द ऑप्टिक नर्व में जाएगा ना, और थ्रू द ऑप्टिक डिस्क इट विल इमर्ज एंड इट विल फॉर्म द ऑप्टिक नर्व, है ना। ऑप्टिक नर्व से फिर ऑप्टिक काइज़मा बनाते हैं, देन ऑप्टिक काइज़मा से ऑप्टिक ट्रैक बनाएगा, एंड देन ऑप्टिक ट्रैक विल बी टर्मिनेटेड एट विच लेवल, लैटरल जेनुक्लेट बॉडी, है ना। लैटरल जेनुक्लेट बॉडी में आपको बताया था देयर आर 6 लेयर्स, लैटरल जेनुक्लेट बॉडी इज अरेंज इन 6 लेयर्स, 1 to 6। उसमें फर्स्ट और सेकंड लेयर क्या बनाता है, मैग्नोसेलुलर पाथवे, दैट इज मेनली कंसर्न विथ मूवमेंट एंड फ्लिकरिंग एक्शन, डेप्थ परसेप्शन, है ना। देन अनदर पाथवे पार्वोसेलुलर, दैट इज फॉर्म्ड बाय द 3rd to 6th लेयर, एंड दैट इज वो क्या किस चीज के लिए होता है, मेनली कलर फाइनर डिटेल्स के लिए होता है ना। एंड ऑल्सो इन बिटवीन द लैमिना, दैट इज द इंटरलैमिनर रीजन से भी फाइबर्स निकलते हैं, है ना। एंड दैट इज मेनली, ये आपको मेनली कलर परसेप्शन के लिए होता है, इंटरलैमिनर रीजन से जुड़ा है ना। एंड पार्वोसेलुलर रीजन ये कहाँ जाएगा फिर, विजुअल कॉर्टेक्स में, विच लेयर ऑफ विजुअल कॉर्टेक्स, फोर्थ लेयर, पार्वोसेलुलर जाएगा 4th लेयर में, एंड इंटरलैमिनर रीजन 2nd and 3rd लेयर में।
ultimately what happens that this is carbocellular जो layer 4 में आता है, 4C also terminates in the layer, goes to the layer second and third, and this layer second and third of the visual cortex, there are collection of enzyme that is called, कौन सा enzyme होते हैं? Cytochrome oxidase का enzyme होता है, and they form a cluster, and that is called the blob, and that blob is mainly responsible for color vision, blobs in the layer second and third. Okay, and it is also held by the visual association areas. Okay, in the occipital cortex. Are you able to understand this pathway? You should, अगर color vision आता है आपको short note में itself अगर theories आता है तो you should mention all the 2 theories. ये 2 theories लिख सकते हो. लेकिन अगर itself color vision आता है you can make the pathway also. ठीक है? Then coming on to the some applied aspects, color blindness पे भी आ जाता है short note at times. It can be asked. So a term called achromatopsia क्या हुआ? Achromatopsia. That is the loss of color vision. Complete loss of color vision को कहते हैं achromatopsia. Complete loss of color vision. Color blind है complete. उसको achromatopsia कहेंगे. So you know color blindness. Color blindness क्या हुआ? It is the inability to perceive any of the colors due to the certain colors due to the partial loss of color vision. ठीक है? इसमें mainly जो होता है males में ज़्यादा देखा गया है. Approximately 8% of the males are affected, and less than 1% of the females are affected. Okay, this is a X-linked recessive disorder. X-linked recessive disorder है, and females are the carriers and males क्या है? वो शो करता है डिजीज को, है ना? So अगर X आपने पढ़ा होगा जेनेटिक्स में, अगर एक पे अगर डिफेक्टिव जीन है देन इट विल कैरियर, है ना? अगर मेल में चला जाएगा तो क्या होगा? एक जीन अगर डिफेक्टिव है दैट विल प्रोड्यूस द डिजीज. ओके, सो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस सबसे ज़्यादा देखा गया है. रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज द मोस्ट कॉमन टाइप. इसमें आप जब देखोगे व्हेन यू विल स्टडी देयर विल अच्छा आपको प्रीफिक्स और सफिक्स मिलता है इसके डिजीजेज में. प्रोटेनोमेली, प्रोटेनोपिया, इस तरह का वर्ड्स मिलेगा. प्रोट, ड्यूटर और ट्रिक, इस तरह का प्रीफिक्स मिलेगा आपको. और सफिक्स मिल रही है एनोमली और एनोपिया. यही मिल सकता है इसमें कलर विजन के डिफेक्ट में. कलर विजन के डिफेक्ट में इसी तरह का डिजीज मिल सकता है जिसमें आपको प्रीफिक्स प्रोट रहेगा, ड्यूटर और ट्रिक. प्रोट मीन्स फॉर रेड कलर, ड्यूटर फॉर ब्लू कलर and treat for green color. Okay, and anomaly that is the अगर weakness है ना, कलर वीकनेस को कहते हैं. कलर लॉस नहीं है, कंप्लीट लॉस ऑफ दैट कलर. इट इज द वीकनेस ऑफ अ पर्टिकुलर कलर, है ना? ग्रीन अच्छे से उसको नहीं दिख रहा है. ओके, लाइक दैट. सो दैट इज कॉल्ड एनोमली. एनोमली मीन्स सम वीकनेस इज देयर. एनोपिया मीन्स लॉस ऑफ that color, specific color. So what may be the defect? What may be the possible defect? Proteinomally, है ना? Deuteranomaly, tritanomaly, उसका weakness हो रहा है. अगर उसका loss है तो proteinopia, deuteranopia और tritanopia, यही possible defect हो सकता है. Okay. Then the classification of color blindness करते हैं. There are broadly it is classified into 3 types: trichromats, dichromats and monochromats. इसका नाम से ही है monochromats का मतलब monochromats में only one color will be normal, और बाकी दो जो टोन्स हैं दोनों डिफेक्टिव हो जाएंगे monochromats में. तो आपको बताया था at least 2 colors must be present to perceive the color, colorful आपको vision के लिए. तो इसमें आपको कलरफुल मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा. ब्लैक एंड व्हाइट या ग्रे कलर का आपको विजन मिलेगा. ठीक है? मोनोक्रोमैट्स आर नॉट एबल टू परसीव द कलरफुल ऑब्जेक्ट को कलरफुल नहीं देख पाते. डाइक्रोमैट्स में क्या होगा? 2 कोन पिगमेंट ठीक रहे हैं. थर्ड कोन पिगमेंट जो
तो डाइक्रोमैट, इसमें क्या होगा, आपको एनोपिया मिलेगा, आपको बताया था ना, ट्राइकोनोपिया, डिप्रेनोपिया एंड प्रोटेनोपिया मिलेगा। ओके, इसमें ओपिया मिलेगा, क्योंकि एक कलर इसमें एब्सेंट होता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट, बाकी दो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहते हैं नॉर्मल कलर, लेकिन ट्राइक्रोमैट में तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, बट वन ऑफ द कोन पिगमेंट इज डिफेक्टिव, इट इज नॉट एब्सेंट, ठीक है, एक कोन पिगमेंट सिर्फ डिफेक्टिव रहेगा, तो प्रोटेनोमैली मिलेगा, डिप्रेनोमैली एंड डिटेनोमैली। Are you able to understand? This is the most common type. Trichromat is the most common type. ठीक है? So these are the classification of color blindness: trichromat, dichromat and monochromat. Then etiology इसका क्या cause है? Mostly अभी बताया आपको X-linked recessive disorder है ना? So the females are the carriers and the males are the bearers, the sufferers you can say. ठीक है? And acquired cause is also there. If there is lesion in the visual pathway, जो color pathway है, उसमें अगर lesion कहीं पे हो रहा है ना, then आपको color blindness हो सकता है. Then there are certain drugs which are responsible for causing this color blindness, especially a drug called sildenafil citrate. Have you heard of this drug? Sildenafil citrate, that is marketed by the name Viagra. Okay, so this also causes some color blindness, temporary color blindness कराता है उसमें. So there are tests of color blindness. You already acquainted with this Ishihara chart, green lantern test, तो आपको पता है, and Holmgreen wool matching test. You all know this test, I think. Are you all, everyone is aware now? Ishihara chart. Then what are the uses of the color blind? You know, these are performed mainly for the, in case of recruits in the army, and अगर pilots हैं, okay, these are the drivers लोगों के लिए, ये सब के लिए usually ये कराया जाता है. Ishihara chart, you are all aware of this. Then there is a term called visual acuity, ये आपको हो चुका है, for the near vision and distant vision. ये भी हो सकता है, शॉर्ट नोट में आ सकता है, मे बी आस्क्ड विजुअल एक्यूटी. अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, विजुअल एक्यूटी में बी आस्क्ड एज अ शॉर्ट नोट. सो इट इज द एबिलिटी टू सी द 2 पॉइंट्स और लाइन क्लियरली एज डिस्टिंक्ट. इट इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द आई. इसको हम डिस्टेंट विजन और नियर विजन के लिए करते हैं. यू कैन राइट ऑन ऑल दिस पॉइंट्स. देयर आर द फैक्टर्स विच आर कॉजिंग द विजुअल एक्यूटी, विच आर अफेक्टिंग द विजुअल एक्यूटी. देयर आर ऑप्टिकल फैक्टर्स, दैट इज द कॉर्नियल फैक्टर्स. लेंस में जो फैक्टर्स हैं, रिफ्रैक्टिव फैक्टर्स जो हो गए, उसको बोल रहे हैं ऑप्टिकल फैक्टर्स. देन देयर आर रेटिनल फैक्टर्स विच आर मेनली एसोसिएटेड इन द रेटिना. रेटिनल लेयर्स में, कोन्स में आपको पता है 1-to-1 अरेंजमेंट होता है ना. 1-to-1 अरेंजमेंट इज देयर इन द केस ऑफ कोन्स. एक कोन सेल्स एक बाइपोलर सेल से अटैच होगा, एक गैंग्लियन सेल से, लेकिन मल्टीपल रॉड्स में भी अटैच विद सिंगल बाइपोलर सेल है ना. सो इसका विजुअल एक्यूटी ज़्यादा होता है. विजुअल एक्यूटी इज मोर फॉर द, है ना, विजुअल एक्यूटी ज़्यादा होता है, ठीक है, फॉर द कोन्स के लिए ज़्यादा मिलता है विजुअल एक्यूटी. लेकिन सेंसिटिवनेस आपको रॉड्स का ज़्यादा होता है. दीज आर द 2 पॉइंट्स यू शुड अंडरस्टैंड. क्योंकि आपको रेटिना में जो फोबिया होता है, वहाँ पे देयर आर ओनली द कोन्स विच आर कॉन्सेंट्रेटेड, एंड देयर आर स्टिमुलस फैक्टर्स. स्टिमुलस फैक्टर मीन्स ऑब्जेक्ट फैक्टर्स. ऑब्जेक्ट का इल्यूमिनेशन कितना है, कलर क्या है, डिस्टेंस क्या है, दिस ऑल्सो अफेक्ट द विजुअल एक्यूटी. किस डिस्टेंस से आप देख रहे हो. 2 लाइन अगर बनाया हमने, 2 पॉइंट है, दोनों को अलग अलग दिखना है, तो 1 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, तभी वो दिखेगा. ओके, दैट्स वाई इट इज डन एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 meters. दिस में बी आस्क्ड इन द वाइवा, प्रैक्टिकल वाइवा में. फॉर नियर विजन के लिए हम जैगर्स चार्ट यूज करते हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 centimeters. देन देयर आर डिफरेंट ऑकुलर मूवमेंट्स. ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए. सैकेट्स क्या होते हैं, स्मूथ परसूट मूवमेंट्स क्या है, वर्जेंस, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस. देन देयर इज वेस्टिबुलर मूवमेंट्स. सैकेट्स क्या होता है, एनीवन हु कैन टेल व्हाट इज सैकेटिक मूवमेंट?
सैकेडिक मूवमेंट क्या हुआ? सपोज दैट यू आर लुकिंग एट अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यू आर मूविंग इन, कहीं जा रहे हो आप, सर्टेन कोई ब्यूटीफुल चीज आपको नजर आ गया, अचानक क्या करते हो? यू मूव योर आइज टू दैट पॉइंट. सो सडन एंड जर्की, ओके, so that is the rapid jerky movements that occur when the gaze shifts from one object to another. एक ऑब्जेक्ट देख रहे थे, अचानक दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया, उससे आप कूद करके उस पर चले गए. दैट इज द सैकेडिक मूवमेंट, है ना. देन नेक्स्ट दैट इज द स्मूथ परसूट मूवमेंट. क्या हुआ? अगर आपने वो ब्यूटीफुल चीज देखा, उसको आप फॉलो करें, वो कहीं जा रहा है, यू आर फॉलोइंग विद योर आइज, दैट इज कॉल्ड द स्मूथ परसूट मूवमेंट. ओके, दैट इज द smooth, the tracking movement of the eye as they follow the moving object. Okay, so saccadic movement and smooth pursuit movement. Then another is the vergence and divergence. कोई ऑब्जेक्ट अगर आप देख रहे हो, उसको नजदीक लेके आओगे तो क्या होगा? आपका आइज कन्वर्ज करते है ना, पिपल्स कन्वर्ज करते. दूर जाएगा तो ये डाइवर्जेंस होगा. ठीक है. So these movements occur when the object comes near or moves far from the eye. That is the convergence and divergence movement. Then vestibular movements क्या हुआ? When the आपका head जब move कर रहा है, to keep the object in focus, what happens that semicircular canal का भी movement होता है वहाँ पे, है ना. वहाँ से stimulus आता है आपको. You know the semicircular canal are mainly involved in vestibular function, है ना उसका, है ना. ये आपने 11th-12th में पढ़ा होगा. So in response to the stimulus which is arriving from the semicircular canal, the head moves according to the object in focus, to keep the object in focus. So the eyeball also moves. This is called the vestibular movement. Then few recent terms, that is the electroretinography. एक terms आप पढ़ोगे. These are the latest terms. ये investigations है mainly to see the defect in retina, especially रेटिनल डिफेक्ट देखने के लिए इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी कराया जाता है. ठीक है. एंड ऑल्सो अनदर टर्म यू विल सी इवोक पोटेंशियल करते हैं, है ना. सो इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी में इस तरह का ग्राफ मिलता है. इसमें क्या करते हैं? इट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ द रेटिना व्हेन इट इज स्टिमुलेटेड विद द फ्लैश ऑफ लाइट. आपने दिया तो रेटिना में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होगा, तो उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी. तो इस तरह का एक पहले डाउन स्ट्रोक आता है, फिर अप स्ट्रोक आता है. डाउन स्ट्रोक क्यों आएगा? दैट इज ड्यू टू द हाइपरपोलराइजेशन जो आपको रॉड एंड कोन सेल्स में आते हैं, एंड फॉलोड बाय द बाइपोलर सेल्स एंड गैंग्लियन सेल्स. वहाँ पे डिपोलराइजेशन होता है. यू नो, जो रॉड एंड कोन सेल्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं, ग्लूटामेट होते हैं, दैट इज इनहिबिटरी. लेकिन बाइपोलर सेल्स में आगे जाके वो एक्साइटेटरी रहती है. ठीक है. So this A वेव रेटिनल फोटोरिसेप्टर्स के लिए है, B वेव बाइपोलर सेल्स के लिए है, और C वेव ग्रेजुअली इंक्रीज करता है फॉर द पिगमेंट एपिथेलियल लेयर. सो विथ फुली, इसमें क्या करते हैं इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी में? आई को डायलेट कर देते हैं, एंड आईज पे, कॉर्निया पे एक इलेक्ट्रोड्स को रखते हैं, एंड अनदर इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड ओवर द स्किन ऑफ द फोरहेड एंड अदर ओवर द ईयर लोब. सो इस तरह का ग्राफ मिलता है. So this is important to assess the integrity of the retina, mainly the retinal detachment, retinal dystrophy, इस तरह का डिजीज जो होता है. One more point is that retinal detachment आपने सुना होगा. तो retinal detachment कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? Which layer of the retina? या पूरा रेटिना का जितने लेयर पे 10 लेयर्स अलग हो जाते हैं कोरोइड से, या something else happens? So I will tell you that what happens that in the retinal detachment, जो retinal pigment epithelial layer है और rest of the layers of the retina, वहाँ पे potential layer है, वहाँ से ज़्यादा retinal detachment होता है उसी एरिया में. ठीक है. So retinal detachment का मतलब हुआ not that कि पूरा retina ही अलग हो गया 10 layers. It is that retinal pigment epithelial layer is detached from other layers. That is called the retinal detachment. Okay. Then another term is visual evoke potential. इसमें भी एक तरह ग्राफ मिलता है. इसमें क्या करते हैं? जो ऑक्सीपिटल एरिया है वहाँ पे हम क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं एंड डिफरेंट एरियाज ऑफ द स्कैल्प में डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं. दैट इट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज. विजुअल पाथवे का पूरे का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ये बताता है.
generated in the visual pathway from retina up to the visual cortex. जब हम लाइट देते हैं, okay, so it is recorded by placing the scalp electrodes over the occipital area. Scalp electrodes लगाते हैं, okay, and ये entire visual system का intactness को बताता है, visual system का exact point नहीं बता पाता है ये कि where is the lesion. It can only detect the abnormality. It do not exactly localize the site of the lesion. आएगा नहीं आपको एग्जाम में यूजुअली, बट दीज आर टर्म्स विच यू विल कॉमनली कम अक्रॉस. सो इसमें इस तरह का ग्राफ मिलता है. P का मतलब पॉजिटिव कहते हैं, N फॉर निगेटिव. ओके, दिस P100 वेव, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, है ना. दिस इज द लार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल दैट हैकर्स आफ्टर 100 मिलीसेकंड के बाद मिलता है. इसमें भी होता है कितने ड्यूरेशन का है, कितने वोल्टेज का है, ये सब देखते हैं. So just to have a view of this, I have told these evoked potentials. Okay. Then another is the nystagmus. Nystagmus क्या हुआ? Involuntary jerky movement वो कहते हैं, है ना. That is the involuntary rhythmical oscillatory movement of the eye. हमारे eyes continuously इस तरह से move करते रहते हैं, है ना. So what happens that there is physiological nystagmus also. Physiologically nystagmus कब कहते हैं? हमारा आईज इस तरह से ब्लिंक क्यों करता है बार बार? अगर हम लगातार एक साथ देखते रहेंगे विदाउट ब्लिंकिंग, आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन दैट विल नॉट बी एबल टू परसीव क्लियरली. ठीक है, तो क्या होता है, बार बार उसका फोकस चेंज होते रहता है टू हैव ए क्लियर इमेज. दैट इज कॉल्ड द फिजियोलॉजिकल निस्टैग्मस. व्हेन द गेज इज फिक्स्ड ऑन ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, देयर अकर्स कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फ्यू मसल्स प्रोड्यूसिंग मिनट ऑसिलेशंस एट द रेट ऑफ 30 to 80 cycles per second. This is called the physiological nystagmus. This is important. This helps the eye to see the object clearly for longer duration. ज़्यादा देर तक आप लैपटॉप देख रहे हो, so अगर इस तरह का physiological nystagmus नहीं होगा, you will not be able to do that. Then there is pathological nystagmus. अगर इस रेट से नहीं हो रहा है, रेट ज़्यादा हो गया उसका, है ना, and the oscillatory movements become noticeable, and it can be due to the disorders of vestibular system, region in the neuronal pathway which is controlling the ocular movements. So in this way we finish the topic on eye. Next we will discuss the ear physiology.